Morning everyone. So yesterday we studied about Snell's law. We also discussed about the laws of refraction. Then we also studied about the applications of Snell's law. And today we are going to talk about the refraction through a rectangular glass slab. We will be talking about the topic that is refraction through a glass slab. So now while we are talking about this topic, then first of all we have to draw a glass slab. So just imagine that I will draw over here a rectangular glass slab. Just suppose this PQ and RS is a rectangular glass slab, and here we want to show incident ray which is falling on the interface PQ. You know very well what is interface. This PQ, this is the interface, the point of contact of one medium and the second medium. Suppose this is medium 1 and this is medium 2. So the point of contact in between these two mediums, this PQ is the interface. So we are talking about the ray AB which falls on the interface at point B. So just let us consider that suppose this ray AB it falls on the interface PQ at point B, then over there the ray propagates from air to the glass slab. This ray AB is propagating from air. The medium 1 is air and the medium 2 is glass. Okay, it is propagating to the glass slab. Then what will happen? The ray will refract. Now here if we suppose we are learning properly and keenly, here you can see that this would be the normal. This normal is perpendicular to the interface itself. Okay, so what will happen now? The ray will get refracted. Instead of obeying its straight path in this manner, it will not go directly in this path, but it will be deviated. It would be deviated. And if suppose that this ray is bending towards the normal, now this ray is bending towards the normal, here the ray BC. Okay, it is bending towards the normal according to the Snell's law. What is Snell's law? We know very well that what is Snell's law. We had studied the refractive index of the medium air, then the angle made it by sin I. This product is directly equal to the product of refractive index of glass and the angle, the sine which is made by the refracted angle. Okay, so suppose this, let us give this names as here this is the angle of incidence I, it is the refracted angle R. Suppose this is I1 and this is R1. Okay, so this is the first condition which we are getting by studying this figure. Now where the angle of incidence is between the incident ray and normal, and this R1, suppose this is the refracted angle or angle of refraction between the refracted ray and the normal itself. So now this refracted ray BC will act as the interface on the SR. Now suppose if I am extending this ray BC, अगर इस BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे होगा. कहाँ पे? The interface would be SR. This SR would be the another interface. Why? Because here it is the medium 2 of glass and here it is the medium of air. So here the line which is joining the medium, both the mediums, that is again an interface itself. So this BC is acting as an incident ray for the interface ESR,
देन व्हाट हैपन्स हेयर अगेन द रे चेंजेस द मीडियम फ्रॉम ग्लास टू एयर। अभी ग्लास टू एयर चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल कंसिडर कर लो, दिस वन इज द normal here itself. So what will happen then? Now if we are talking here again, the ray changes the medium and due to the change in medium it will bend away from normal. अभी यहाँ पे क्या होगा, this ray instead of going straight in this manner, इस तरह से जाने की बजाय now this ray will change its path, this ray will bend away from the normal, इस तरह से जाएगा. ओके, this would be the refracted ray. तो अगेन यहाँ पे एक एंगल तैयार होगा, लेट अस शो इट. तो यहाँ पे भी क्या होगा, देन दिस अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, या अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को, तो वी विल कम टू नो दैट हेयर यहाँ पे एक एंगल बनेगा दैट इज सपोज I2, और यहाँ एक रिफ्रैक्टेड एंगल तैयार होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा R2. तो विद दैट वी कैन से दैट नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास and into the angle, sine angle made by the incident ray here I2, and suppose that is the refractive index of air and the product with sine angle made by the refracted ray that is R2. तो ये हमें सेकंड कंडीशन मिल गई वहाँ पे. ओके, जस्ट सपोज इट. देन अभी आगे क्या होगा वहाँ पे, तो देन व्हेन वी ऑब्जर्व इट, तो मैं अभी ये जो रे है, इस रे को क्या बोलूँगा मेरा, दिस वुड बी माई इमर्जेंट रे. व्हाट इज इमर्जेंट रे? इमर्जेंट रे किसे कहा जाएगा कि अगर मान लो एक कोई रे है एंड दिस रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से निकल रही है और दूसरे वही मीडियम दूसरे में एंटर करता है, उस मतलब फर्स्ट मीडियम से रे एंटर करती है सेकंड मीडियम में, और सेकंड मीडियम से रे बाहर निकलती है, वही रे द ओरिजिनल रे, तो यहाँ से बाहर निकल रही है. तो ये जो रे बाहर निकल रही है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके ट्वाइस, तो दैट इज इमर्जेंट रे. ये क्या होगा हमारा, इमर्जेंट रे होगा. ओके, तो इस इमर्जेंट रे का एंगल जो है, तो मैं इमर्जेंट एंगल ई बताऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन I2 इज इक्वल टू साइन ई. दिस वुड बी माय, मान लो इसे मैं इक्वेशन सेकंड कहता हूँ. ओके, अभी देन वन मोर थिंग लेट अस नो कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, दे आर द अल्टरनेटिव एंगल्स. ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, तो मान लो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2. अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो मतलब देखो ये नॉर्मल पैरेलल जा रहा है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो रही है इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग एंगल्स हमें मिल रहे हैं. ओके, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन I2 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा आई विल पुट इट हेयर R1 विच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू एंगल ऑफ साइन इमर्जेंस. सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 मॉडिफाई करने के बाद. तो यहाँ इन सब को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो लेट अस से दैट हेयर, अभी मतलब इससे क्या पता चलता है फिर हमें कि मान लो फ्रॉम 1 and 2, अगर हम 1 और 2 को अगर कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं हम, ओके, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे हम, ये दोनों का वैल्यू सेम है. देखो यहाँ पे R1 ये सेम आ रहा है, इट मीन्स दैट साइन I इज इक्वल टू साइन E. ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है. ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए. फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम 1 and 2. तो देन वी कैन से, अभी यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ एट फाइनल, कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों तरफ सेम है. तो अभी बचा क्या यहाँ पे, साइन I इज इक्वल टू साइन E. तो ये I1 है. ओके, तो इट मीन्स दैट I1 इज इक्वल टू E. ओके, I1 इज इक्वल टू E, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल, मतलब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ का, दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का मेजरमेंट क्या हो गया हमारा, सेम हो गया. तो ये क्या कहता है देन, दिस विल शो दैट, दिस शोज अस दैट द इंसिडेंट रे जो है
यहाँ पे जो एंगल बना रहा है और जो इमर्जेंट रे है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स अगर सेम है तो ये रे और ये रे पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? अभी नाउ लेट अस सपोज दैट इफ़ वी कंटिन्यू आवर रे, ये जो रे है आगे तक हम अगर इसे ऐसे कंटिन्यू करते हैं, देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके, तो ये क्या होगा हमारे इमर्जेंट रे के साथ, इट वुड गो इन अ पैरेलल मैनर। मतलब जो हमारा ये जो इंसिडेंट रे है जिसे हम ट्रेस कर रहे हैं डॉटेड रेड लाइन से, और ये जो हमारा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये इमर्जेंट रे है, दिस बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। दिस बोथ आर पैरेलल एंड डिस्टेंस d इज देयर, वो सेपरेट किया गया है डिस्टेंस d से। तो थ्रू द इमर्जेंट रे वी कैन से दैट though the emergent ray is parallel to the incident ray but emergent ray is displaced sideways। मतलब क्या हो रहा है, उसकी जो जगह है वो डिस्प्लेस की गई है, इट इज डिस्प्लेस्ड। एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मतलब यहाँ से जो आ रहा है दैट इज इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन देम है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ओके। दिस डिस्प्लेसमेंट वुड बी नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो अभी ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जो ग्लास स्लैब है हमारा उसके थिकनेस को, मतलब समझो ये जो पी एस है दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। यहाँ पे लिखूंगा मैं पी एस थिकनेस ऑफ स्लैब। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन जो एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे, दैट इज उसका कॉस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उसका कॉस लिया जाता है, ओके। एंड देन मोर वन थिंग उसमें क्या ऐड की जाती है, तो द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होगा वहाँ पे? सब्सट्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो मेजरमेंट आता है, डिफरेंस इन बिटवीन देम, उसका प्रोडक्ट होगा। मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? थिकनेस पी एस है अपॉन कॉस आर वन इंटू साइन आई वन माइनस आर वन। तो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास। मतलब d इज, यहाँ पे देखो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास। मतलब थिकनेस ऑफ द ग्लास जितना ज़्यादा उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। दिस मीन्स दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर इफ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज मोर। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जितना ज़्यादा उतना क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये अगर और ज़्यादा थिक है तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास इटसेल्फ। होप यू आर क्लियर विद इट। थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग पोर्शन है, थोड़ा सा समझने के लिए अगर कंफ्यूजिंग लगे तो बार बार देखना। आज इतना ही लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड रेक्टेंगुलर प्लेट, या फिर हम समझो मान लो टू मीडियम्स या टू अलग अलग ग्लास स्लैब्स है, दो अलग अलग मीडियम है एक साथ, फ्रॉम मीडियम 1 to 2, मीडियम 2 to मीडियम 3 एंड फिर मीडियम 1। मतलब कंपोजिशन करेंगे मीडियम 1 2 3 और फिर 1 का कंपोजिशन अगले वाले में देखेंगे। अभी यहाँ पे फ्रॉम 1 मीडियम टू सेकंड एंड सेकंड टू 1 जब आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, जस्ट लुक एट वंस। इसको अच्छे से एक बार देख लेना, कल हम देखेंगे ऑफ द कंपाउंड रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके। सो जस्ट टू मेमोराइज वन थिंग एट द एंड ऑफ द टॉपिक, दैट अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डज नॉट डेविएट लाइट। दिस मीन्स दैट मतलब लाइट डेविएट एक ग्लास स्लैब की तरफ से नहीं होता है। तो क्या होता है वहाँ पे? दिस मीन्स द इंसिडेंट रे जो है, दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, और द स्लैब ओनली प्रोड्यूसेस साइडवेज। मतलब एक साइड वे बता रहा है, सिर्फ शिफ्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, पाथ डेविएट नहीं करता है या फिर पाथ को चेंज नहीं करता है, जस्ट इट इज गिविंग अ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि साइड बाईपास बोलते हैं हम उसे, उस तरह से ये बाईपास देता है उस रे को, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इंटरफेस क्या है वो आपको पता है, देन हाउ डज इट टेक प्लेस एट द फर्स्ट पॉइंट, देन हाउ डज इट टेक प्लेस एट द सेकंड वन, और उसके जो को रिलेशंस है
वो कोरिलेशंस के हिसाब से हम लोगों ने फाइनली बताया कि द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंड द कंक्लूजन थ्रू आउट दिस इज दैट the emergent ray and the incident ray are parallel to each other, and the slab only produces the sideways or the displacement of the path. It means that the lateral displacement is more if the thickness of the glass slab is more. Okay, so let us stop here today.